वापस चैप्टर 1 थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट। अभी तक हम कोई 6 क्लासिकल थ्योरीज कवर कर चुके। क्या क्या थी वो 6 क्लासिकल थ्योरीज? टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट, फायोल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट, लिंडल उर्विक, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मैक्स वीबर, characteristics of bureaucracy, Rosemary Stewart, features for bureaucracy और एल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। एक्सपेरिमेंट क्या था एल्टन मायो का? हाथॉन वर्क एक्सपेरिमेंट। हाथॉन वर्क एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की 5 रीजन क्या थी? कमिटमेंट, टीम वर्क, पॉजिटिव मोटिवेशन, freely contribution without any coercion from management, good relationship between workers and management। सर 4 फैक्टर्स क्या थे जो हमें फोकस करने हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू एल्टन मायो? प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन इनहैंस करने के लिए 4 फैक्टर्स क्या फोकस करने हैं? सर क्या थे 4 फैक्टर्स? हाँ नहीं, पहला पॉइंट कंप्लीट करें। वर्क है सोशल वैल्यू फॉर वर्कर्स, तो कैसे सोशल वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है? सेल्फ इंटरेस्ट या सो क्या करना है? There must be informal. There must be informal organization. There should be informal organization। चलो माना। दूसरा पॉइंट क्या था? सेल्फ स्टीम। क्या सेल्फ स्टीम को क्या करना है? खानी है, पकानी है, क्या करना है इसको? So there should be self. मिस क्या थे 4 फैक्टर्स? Work is social value for workers. They are not interested only in self-interest. Good. Informal organization also affect the attitude of work. Good. Second point. Productivity of the workers are also affected by the self-esteem. Good. Workers who are selected for the experiment have high self-esteem, which increases Good. Third one. Work satisfaction. Work satisfaction lies. Managers and workers must have communicate with each other. Otherwise, they will send the managers for focusing only on cutting the cost and improving efficiency. And what was the third factor? Work productivity as well from recognition, security, and sense of security. Belongingness rather than monetary reward only। सर क्या थे 4 फैक्टर्स? Work as social value for workers। Okay. Okay. Second. Low esteem, self esteem। करना क्या इसको? मिस्टर क्या थे 4 फैक्टर्स? Social value for work as social value for working. हाँ। सेल्फ स्टीम को क्या करना है? सेल्फ स्टीम को करना क्या है? क्यों करना है? मेक देम कॉन्फिडेंट। क्यों कॉन्फिडेंट करना है? नहीं, सेल्फ स्टीम क्यों?
मीन्स क्या थे 4 फैक्टर्स? इसको एक्सप्लेन करें। पहला पॉइंट, वर्क हैज सोशल वैल्यू फॉर वर्कर्स, दे डू नॉट वर्क ओनली फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। तो क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, सेकंड पॉइंट, नो मिस्ड क्या थे 4 फैक्टर्स? Workers are motivated not only by self-interest, then from an organization is important in the practice of workers' attitude. The productivity of workers is affected by self-esteem. The self-esteem of individuals is important. Self-esteem is increased as they have been selected into the experiment. But satisfaction lies in recognition, security and sense of belonging rather than the monetary reward. मीन्स फोर्थ फैक्टर क्या था? If there is no communication and workers resent, सेकंड प्रिंसिपल क्या था मिस? सेकंड प्रिंसिपल क्या था? Productivity of workers can be increased by? Not only self-interest. The productivity of workers is increased by not only self-interest. नहीं, मिक्सअप कर दिया। सेकंड प्रिंसिपल, productivity of workers can be increased by increasing their self-esteem। थर्ड प्रिंसिपल क्या था? Managers need to communicate with workers. Communicate with workers to. If there is no communication, If there is no communication between workers and managers, the conflicts are inevitable, and workers resent the tasks of management of cutting costs and improving efficiency. efficiency। मॉडर्न थ्योरी भी हमने स्टार्ट की है। किसकी थ्योरी अभी तक हमने स्टार्ट की है? पीटर ड्रकर ने क्रिटिसाइज किया किसको? फयाल को। सर वो क्रिटिसिज्म क्या था जो पीटर ड्रकर ने किया फयाल का? हाँ, साथ वाले से पूछें जरा, सर वो क्या था क्रिटिसिज्म जो पीटर ड्रकर ने फयाल का किया? मिस्टर नजरें तो मिलाना। पीटर ड्रकर ने क्या क्रिटिसिज्म किया फयाल का? सर क्या था क्रिटिसिज्म? सर क्या था क्रिटिसिज्म? ऑन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? मैनेजिंगा साथ हो जाए। मिस क्रिटिसिज्म क्या था फयाल का जो पीटर ड्रकर ने किया? ये सारे बता के बैठे हुए। अंग्रेजी बना के क्या क्रिटिसिज्म था? अंग्रेजी क्या बनी? मैनेजिंग का कमर्शियल बिजनेस। मिस क्या था क्रिटिसिज्म? मैं कल नहीं आई थी, क्यों? और एक क्लास छोड़ने का मतलब 5 नंबर का पेपर छोड़ना है। थ्रू आउट दिस सेशन 10 छुट्टियां करके
50% चांस बचेगा पेपर पास करने का। सर क्या था क्रिटिसिज्म? सर क्या था क्रिटिसिज्म? पूरी बात करें। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बात जो उसने स्टार्ट की किस चीज को वो हिट कर रहा है? For all principle of management cannot apply to all type of organization. Managing a commercial business is different than managing other type of organization. तो सर बिजनेस को कैसे मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर? अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर बिजनेस को मैनेज कैसे करना है? कैसे मैनेज करना? 5 ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव है? 5 ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ये कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ और चीज है। हाँ ठीक कह रहा है कि 5 ऑब्जेक्टिव मीट करने हैं मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है मैनेजमेंट को। तो क्या है? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या है 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, there should be objective of the managers to achieve objective of the organization, organizing work. मिस्टर, क्या थी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नाम दो पहले पांचों के। मतलब मैं तो एडिंग ही नहीं आती, अंदर वाला मटेरियल तो फिर बड़ी दूर की बात पहुंच जाएगी। क्या करोगे बड़े होके? हमें तो 5 हेडिंग की नाम नहीं आ रहे। हेल्प करो भाई इसकी। 5 हेडिंग्स आप बताओ, उसे नहीं। मोटिवेटिंग पूरी हेडिंग करें। क्या थी? मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। यस। 4th हेडिंग मेजरिंग। 5th डेवलपिंग पीपल को एक्सप्लेन करें। सर डेवलपिंग पीपल क्या था? डेवलपिंग पीपल and themselves. Yes. What is in their employees? Are he stifle them? Yes. He strengthen their integration. नहीं, integrity. Are he strengthen their integrity? Are he corrupts them? Yes sir. Motivating and communicating क्या था? मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक हो गया। कम्युनिकेशन के बारे में क्या बात है? सर मेजरिंग क्या था मिस्टर? मेजरिंग कैसे? अगेंस्ट कैसे मेजर करनी है? सर क्या था मेजरिंग? अगेंस्ट व्हाट मिस्टर? मेजरिंग
बजट आर यार्ड स्टिक, ओके। एंड और क्या करना है? इवैल्यूएट एंड असेस द परफॉर्मेंस। और क्या करना है? रिपोर्ट फाइंडिंग्स। क्या रिपोर्ट करनी है? फाइंडिंग्स टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सर ऑर्गेनाइजिंग वर्क क्या था? सर ऑर्गेनाइजिंग क्या था? डिवाइडिंग द जॉब इनटू। मिस्टर ऑर्गेनाइजिंग वर्क क्या था? सर क्या था ऑर्गेनाइजिंग वर्क? सर सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों नहीं आया था कल? डबल सजा मिलनी चाहिए। आपने छुट्टी भी की और काम भी नहीं करके आए। क्या ख्याल है? वैसे क्यों नहीं आया था? तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टियां आ रही थी, कोई मसला तो नहीं है? हाँ ठीक है सब कुछ। हाँ फिर क्या हुआ? सर क्या था सेटिंग ऑब्जेक्टिव? Set the objective of organization and decide on the targets for the achievement of those objectives, which they then communicate to other people. सर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे? मैनेजिंग मैनेजर्स, मैनेजिंग वर्क और मैनेजिंग बिजनेस। व्हाट इज मैनेजिंग मैनेजर्स? कैसे? These 3 aspects of management responsibilities क्या थे? मैनेजिंग मैनेजर्स कैसे था? थ्रू हाँ। और कैसे मैनेज करना? टारगेट कैसे देने? मैनेजिंग मैनेजर्स क्या मीन्स? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ मीन्स मैनेजिंग बिजनेस क्या था? मिस मैनेजिंग वर्कर्स एंड देयर वर्क क्या था? हाउ टू मैनेज वर्कर्स एंड देयर वर्क? करना नहीं अंग्रेजी। मोटिवेटिंग स्टाफ। सांस ने आगे चलते हैं। चलो सो मॉडर्न राइटर में हमें एक नेक्स्ट मॉडर्न राइटर मिली, रोजाबथ मोस कांटर। ये पीछे वाला एरिया पढ़ नहीं रहा। ये पीछे जो 1-2 लाइनें बैठी हैं ये लोग पढ़ नहीं रहे। इधर मिडल में भी एक लाइन पूरी की पूरी फारिग बैठी है, पढ़ नहीं रहे। सो कोशिश करें साथ साथ अगर चीज़ें हम कवर करते जाएं, ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी, पेपर इजीली पास हो जाएगा।
रूटीन एक बना लें क्लासेस के साथ, 3-4 घंटे डेली लाइब्रेरी में पढ़ने की। नहीं बनती, प्लीज़ ये छोड़ दो। क्लासेस के साथ अगर आप डेली 3-4 घंटे पढ़ने की रूटीन नहीं बना पा रहे, प्लीज़ ये छोड़ दो, ऐसे नहीं होना। बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, बीसीएस कर लो, बीएससी कर लो। यूनिवर्सिटीज़ में क्लास ली ना ली कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसी टीचर ने पढ़ाना है, उसी ने ही पेपर बनाना है, पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगी 4 साल में, फील भी नहीं होगा और डिग्री भी मिल गई। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से आप सीए करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होना। बिलीव मी, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीए कैसे होगा? क्लासेस के साथ डेली 3 से 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से। नहीं आपकी ये रूटीन बन पा रही, प्लीज़ टाइम नहीं वेस्ट करो, छोटी सी ज़िंदगी उसे ज़ाया नहीं करो। क्या ख्याल है? किया क्या आपने? ना एंजॉय किया, ना सीए किया, तो किया क्या फिर? या भी सीए कर लो, बाद में ये एंजॉयमेंट सारी डबल ट्रिपल होके मिलेगी आपको। और सीए कैसे करो? थोड़ा सा चीज़ों को प्लान करके, एंजॉयमेंट भी साथ है। डेली 3 क्लासेस लो, 2 बजे ख़त्म हुई क्लासेस, घंटा ब्रेक लो, 3 बजे बैठ जाओ, 7 बजे आप फ्री हो। 5:30 ख़त्म होती तो आपकी बेवकूफ़ी, आपने क्लासेस ठीक तरह से प्लान नहीं की कि बीच में आपने फजूल गैप छोड़े हुए हैं। उन गैप्स को यूटिलाइज करो, वहाँ पे घंटा लाइब्रेरी को दो, मॉर्निंग में आके घंटा लाइब्रेरी को दो, ताकि 4 घंटे पूरे करके शाम को 7 बजे आप फ्री हो सको। हाँ, अगर आप क्लासेस लेट रखोगे ताकि मैं सुबह सोया रहूं, तो ये सीए करने वाली अप्रोच ही नहीं है। आपको डेली सिर्फ 8 घंटे नींद चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम किलिंग है, उसका फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 8 घंटे नींद चाहिए आपको। 8 घंटे नींद होगी तो तबीयत फ्रेश होगी। फ्रेश कब नहीं होती? जब 8 से ऊपर आप सोते हो। सो प्लान करो चीज़ों को। सिर्फ 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 साल या ज़िंदगी बना देगा या तबाह कर देगा। दोनों रास्ते आपको बताऊंगा, ज़िंदगी बनानी कैसे है, ज़िंदगी तबाह कैसे करनी है। आपने चूज़ करना है। पेपर पास होता है या हम करते हैं? करते हैं। बड़े गर्व के साथ बताते हो मैंने ये पेपर पास किया पढ़ के, मेहनत करके। पेपर फेल होता नहीं, हम करते हैं। कैसे करते हैं? ना पढ़ के जो किया वो किस लिए किया? पेपर फेल करने के लिए। तो कोशिश करें, अगर सीए करना है तो सिर्फ 1 साल है, सिर्फ 1 साल इंसान बनना है। रूटीन अपनी थोड़ी सी चेंज करनी है, याशी छोड़नी नहीं है। करो शाम में 3-4 घंटे, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले स्टडी, वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो मर्जी करो। ये नहीं कि दुनिया छोड़ देनी है हमने, बस किताबी कीड़े बन जाना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। नहीं, वो चीज़ें भी साथ साथ चलाओ, लेकिन एक टाइम बना के। सो वो ये लेट उठने वाली बातें छोड़ दो। क्लासेस जल्दी रखो, जितनी जल्दी ख़त्म होंगी। 1-2 बजे क्लासेस ख़त्म हो, घंटा रेस्ट करके 4 घंटे पढ़ो, शाम में 7 बजे फ्री। क्या ख्याल है? एक और राइटर हमें मिली, रोजाबथ मोस कांटर। बिजनेस को मैनेज कैसे करना है राइटर हमें बता रहे हैं। सो रोजाबथ मोस कांटर, पीटर ड्रकर ने किसे क्रिटिसाइज किया था? फयाल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। रोजाबथ मोस कांटर ने क्रिटिसाइज किया ब्यूरोक्रेसी को, जिसे वीबर और स्टीवर्ट प्रेफर कर रहे थे कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या करना है? एक फॉर्मल बिजनेस ब्यूरोक्रेसी में जाना है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी डिफाइन करनी है, रिटर्न रूल ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, इम्पर्सनल, इम्पार्शियल
डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, प्रमोशन। तो उस फॉर्मल बिजनेस को रोजाबत मोस कांटर ने पकड़ के क्रिटिसाइज कर दिया। उसने कहा वो जो फॉर्मल बिजनेस ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हो वो क्या है, सपोज ये एक ऊपर लीडर है मीन सीईओ, उसके नीचे क्या है, ये डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, नीचे मैनेजर्स हैं, नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, नीचे सुपरवाइजर्स हैं और फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं। तो क्या एक टॉल स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है। यहाँ पे नीचे कोई मसला आ रहा है, मसले को रिजॉल्व करने के लिए डिसाइड किसने करना है, इन्होंने। वो मसला पहले यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट होगा, फिर यहाँ कम्युनिकेट होगा, फिर यहाँ कम्युनिकेट होगा, फिर यहाँ पे पता चलेगा अच्छा ये मसला है जो हमने रिजॉल्व करना है। ये डिसीजन लेंगे तो भाई ऐसे रिजॉल्व करना है। वो डिसीजन पहले यहाँ पे कम्युनिकेट होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पता चलेगा करना क्या है। और उतनी देर में उस मसले ने हो सकता है वैसे ही आपको डुबो के रख दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है। और अब दुनिया बदल गई है। दुनिया क्या हो गई है, बदल गई है कि पास्ट में इंडस्ट्री मार्केट जो है ये होती थी स्टेएबल या स्टैटिक। पास्ट में इंडस्ट्री मार्केट क्या होती थी, स्टेएबल, स्टैटिक मीन आए दिन चेंजेस नहीं आती थी, कोई सदियों बाद कोई नई चीज, नई चेंज आती थी। अब हमारी इंडस्ट्री मार्केट जो है वो हो गए हैं कॉम्प्लेक्स, डायनामिक या चेंजिंग। क्या अब आईटी का दौर है, आए दिन नई 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 इनोवेशन हो रही है। और अब मार्केट में सर्वाइव कौन करता है, वो जो पहले नई इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहा है। और नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको फौरी डिसीजन लेना है, कम्युनिकेशन फौरी अच्छी एस्टैब्लिश करनी है, ताकि आप फौरी इनोवेशन लाओगे तो फिर मार्केट में सर्वाइव करोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, फिर इस ब्यूरोक्रेसी से मोस काउंटर कहती है बाहर निकलना है। क्यों, ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक टॉल स्ट्रक्चर, लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड, जिसमें इंफॉर्मेशन स्लोली पास होती है, जिसमें डिसीजन मेकिंग में डिलेज आते हैं। और दुनिया बदल चुकी है। दुनिया कैसे बदल चुकी है कि चेंज की स्पीड जो है अब बहुत ज्यादा फास्टर हो चुकी है। एक दिन नई चीज आती है तो अगले दिन और नई चीज आई होती है। पहले कंपटीशन आपका सिर्फ लोकल बिजनेस के साथ होता था, अब पूरी दुनिया के बिजनेस के साथ आपका कंपटीशन है। क्यों, फॉरेन बिजनेस भी अब यहाँ पे आए हुए हैं। सिर्फ लोकल ब्रांड ही नहीं है, यहाँ पे अब क्या है, फॉरेन ब्रांड भी हैं। और फॉरेन ब्रांड क्या इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली। तो उनको compete करने के लिए आपको भी वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है। डेवलपमेंट्स जो आईटी में हो रही हैं उसमें आए दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको भी नई नई इनोवेशन लानी है। इनोवेशन कैसे लाओगे, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी डिसीजन मेकिंग के थ्रू। तो आपको क्या करना है, ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलना है। अपना स्ट्रक्चर यूं टॉल की बजाय क्या करना है, फ्लैट करना है। फ्लैट का मतलब क्या है, सपोज ये टॉप मैनेजमेंट है, ये नीचे मिडल मैनेजमेंट है और इनके नीचे ये सपोज सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयज है। इससे क्या होगा, यहाँ से मसला फौरी ऊपर कम्युनिकेट होगा, डिसीजन फौरी नीचे कम्युनिकेट होगा और सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा। इनोवेशन लाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, वर्कर्स की सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आप अकेले मैनेजमेंट इनोवेशन नहीं ला सकते, वर्कर्स के बिना इनोवेशन नहीं आएगी। क्यों, प्रोडक्शन चीज़ें प्रोड्यूस तो इन्होंने करनी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनकी सपोर्ट तब मिलेगी जब इनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं। रिलेशन अच्छा कब होगा, जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी। कम्युनिकेशन अच्छी कब होगी, जब गैप कम होगा। इसलिए भी आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर टॉल की बजाय क्या बनाना है, फ्लैट बनाना है, शॉर्ट की तरफ आना है। तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों, वो लॉन्ग हायरार्की ऑफ अथॉरिटी की बात करती है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्लोली पास होती है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। और डिसीजन मेकिंग में भी क्या आते हैं, डिलेज आते हैं। तो आपको क्या चाहिए, फ्लैट स्ट्रक्चर चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। इसने अपनी एक बुक लिखी, टीचिंग एलिफेंट टू डांस। टीचिंग एलिफेंट टू डांस।
जिसमें एलिफेंट इसने किसको कहा? बिग कारपोरेट जायंट्स को। कारपोरेट जायंट्स का मतलब क्या है? दुनिया की बड़ी बड़ी नामवर कंपनी, एप्पल, गूगल, याहू, यूनिलीवर, नेस्ले, ये क्या है? कारपोरेट जायंट्स, जिनकी दुनिया में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, दिस मीन ये क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। डांस मीन प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। और क्या कहा इसने कि अगर एलिफेंट डांस करना चाहते हैं, मीन अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इनको क्या करना होगा? अपनी डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन क्विक, फास्टर करना होगी। और वही डांस कर रहे हैं जो जल्दी नई इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। जिन्होंने जल्दी इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं किया, उनका डांस खत्म हो गया। लाइक नोकिया, लाइक कोडक। क्या ख्याल है? नोकिया डांस कर रही थी, 95% कस्टमर उसके पास था, सिर्फ 5% अदर कंपनीज के पास, लेकिन वो डांस रुक गया। बाद में रोना पड़ा, रोते हुए उसका सीईओ आखिरी स्पीच करके गया कि मैं मैनेज नहीं कर सका कंपनी को। क्यों? इनोवेशन को जल्दी अडॉप्ट नहीं किया, डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं थी। जो टीचिंग एलिफेंट टू डांस में क्या कहना चाह रही कि अगर कारपोरेट जायंट डांस करना चाहते हैं, मीन अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलना होगा, डिसीजन मेकिंग को क्विक करना होगा, इंफॉर्मेशन क्विक करना होगी। और उसके लिए क्या चाहिए? टॉल स्ट्रक्चर नहीं, फ्लैट स्ट्रक्चर चाहिए। हम पढ़ते हैं कुछ चीजें क्या कहना चाह रही है रोजाबथ मोसकांटर। So Cantor is probably best known for her work on the inefficiencies of modern bureaucracy. कि ब्यूरोक्रेसी में आजकल के दौर में एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी, इनएफिशिएंट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। And what organization need to do to succeed in the modern business environment? She argued that over time traditional bureaucracies had become unacceptably slow. क्यों? Because of long hierarchical chain of command, जो वो कहते हैं hierarchy of authority होनी चाहिए, information passing slowly through the organization and delay in decision making. The world of business has changed. World of business बोलते हैं इंडस्ट्री मार्केट को, जो पास्ट में क्या थी? स्टेबल, स्टैटिक, लेकिन अब क्या हो गई है? कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, चेंजिंग। क्यों? आईटी का दौर है। So the world of business has changed. Economic circumstances were different. पुराने ज़मानों में इकॉनमी एक दिन कुछ और है तो सदियों वैसे ही चलती थी, कुछ सदियों बाद इकोनॉमिक चेंज आती थी। अब एक दिन इकॉनमी पीक पे होती है, अगले ही दिन इकॉनमी रिसेशन पे भी होती है। रीज़न क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट, आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चेंजेस आती रहती हैं। सो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस वर डिफरेंट, द पेस ऑफ चेंज वाज मच फास्टर। पेस का मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड चेंज की क्या हो गई है? तेज हो गई है। मीन आए दिन नई 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 चेंजेस आ रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजी particularly developments in IT had made the old ways of doing things within a bureaucratic organization very inefficient. Competition had increased. अब आपका सिर्फ लोकल ब्रांड्स के साथ ही कंपटीशन नहीं है, पूरी दुनिया की कंपनी के साथ कंपटीशन है। क्यों? हर फॉरेन चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल है और इजीली कस्टमर के लिए अवेलेबल है। और अगर वो इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आप नहीं करवा रहे, तो फिर आपकी प्रोडक्ट को कोई प्रेफर नहीं करेगा। सो ये 7 पॉइंट हमें लर्न करने। ये क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय रोजाबथ मोसकांटर। क्या है? ब्यूरोक्रेसी बिकम अनएक्सेप्टेबली स्लो बिकॉज ऑफ लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड, इंफॉर्मेशन पासिंग स्लोली, डिले इन डिसीजन मेकिंग, वर्ल्ड of business has changed. क्या? economic circumstances are different, pace of change is much faster, new developments in IT made the bureaucracy inefficient and competition had increased. तो करना क्या अब? टीचिंग एलिफेंट टू डांस, कि अगर एलिफेंट डांस करना चाहते हैं, in her book Teaching Elephant to Dance, she argued that today corporate elephants need to learn to dance. कैसे? As nimbly, as speedily as mice if they are to survive. निम्बली का मतलब क्या है? होशियारी से। स्पीडीली मीन तेजी से, माउस चूहे की तरह इनको बिहेव करना सीखना होगा।
मीन कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग फौरी करना होगी, रादर देन बस सोते 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 रह जाओ। नहीं, आपको फौरी डिसाइड करना होगा, फौरी कम्युनिकेट करना होगा, फिर जाके आपका सर्वाइवल आजकल के दौर में। अगर नई इनोवेशन आ गई है, आप सोच रहे हो मैं अडॉप्ट करूं ना करूं, 2-3 देर में हो सकता है कंपैटर लॉन्च करके वैसे ही मार्केट खींच के ले जाएगा। So if the main game of business is indeed like Alice in Wonderland Circuit, ये गेम का नाम है Alice in Wonderland Circuit, जिसमें जो पहले हिट करता है वो जीत जाता है। तो अगर बिजनेस भी क्या है, Alice in Wonderland Circuit, मीन पहले हिट करने वाला जीतेगा, देन रनिंग इट रिक्वायर फास्टर एक्शन। तो बिजनेस को क्या चाहिए, फास्टर एक्शन चाहिए, एक्शन स्लो नहीं होने चाहिए आपके। मोर क्रिएटिव मैनोवरिंग बोलते हैं बोल्ड स्टेप को, कि जब भी नई चीजों को अडॉप्ट करना है तो आपने कोई ना कोई बोल्ड स्टेप लेना है, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, डर के नहीं बैठे रहना। क्यों डर के बैठे रहोगे तो फिर तबाह हो जाओगे। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आपके बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मीन रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, आपके पास प्रोविजन मीन रिजर्व होने चाहिए। एंड क्लोजर पार्टनरशिप विद एम्प्लॉइज एंड कस्टमर, और कस्टमर एम्प्लॉइज के साथ आपकी पार्टनरशिप मीन रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। क्यों, नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने में एम्प्लॉय की सपोर्ट चाहिए, नई इनोवेशन को सक्सेसफुल बनाने में कस्टमर की सपोर्ट चाहिए, तो उनके साथ रिलेशन भी आपको क्या करने हैं, अच्छे बनाने हैं। सो अगर कारपोरेट एलिफेंट डांस करना चाहते हैं तो क्या चाहिए उनको, फास्टर एक्शन, मोर क्रिएटिव मैनोवरिंग, more flexibility, closer partnership with employees and customers than was typical in the corporate bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। क्यों, ब्यूरोक्रेसी में ये चीजें नहीं है। It requires मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट आपको चाहिए, दैट इज मोर अजाइल बोलते हैं बोल्ड मैनेजमेंट को। एंड लिवलियर का मतलब क्या है, जिंदा दिली, मीन नई चीजें एक्सप्लोर करने वाली मैनेजमेंट चाहिए आपको, डरी मैनेजमेंट नहीं चाहिए। जाहिल बोल्ड चाहिए, लिवलियर चाहिए, दैट परस्यू अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज को परस्यू मीन कैप्चर कर सके, विदाउट बीइंग बॉग डाउन बोलते हैं स्ट्रक होने को, विदाउट मीन बॉग डाउन बाय कम्बरसम स्ट्रक्चर, अननेसेसरी स्ट्रक्चर जो ब्यूरोक्रेसी को कहा जा रहा है, टॉल स्ट्रक्चर। And witty procedure, witty mean heavy procedures that impede action, impede बोलते हैं किसी चीज को पुट डाउन कर देना, दबा देना, जो आपके एक्शंस को दबा देते हैं। So corporate giants in short must learn to dance as nimbly, as speedily like a mice if they are to survive। So क्या चाहिए बिजनेस को, फास्टर एक्शन, मोर क्रिएटिव मैनोवरिंग मीन बोल्ड स्टेप, more flexibility, closer partnership with the customer and employees than was in the typical bureaucracy। और ये चीजें ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। और आपको मैनेजमेंट चाहिए कौन सी, अजाइल, लवलियर, ताकि आप क्या कर सको, परस्यू मीन कैप्चर कर सको अपॉर्चुनिटीज को, विदाउट बीइंग बॉग डाउन मीन बगैर स्ट्रक हुए, इन कम्बरसम मीन फजूल अननेसेसरी स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी, एंड विटी प्रोसीजर, रूल ऑफ कंडक्ट मीन हैवी प्रोसीजर्स में क्या ख्याल है, दैट इम्पैड एक्शन, जो क्या करते हैं आपके एक्शन को दबा देते हैं, मीन आपको आगे नहीं बढ़ने देते। सो इन शॉर्ट कारपोरेट मस्ट लर्न टू डांस एज निम्बली, एज स्पीडली लाइक अ माइस इफ दे आर टू सर्वाइव। तो ये क्या है, टीचिंग एलिफेंट टू डांस कॉन्सेप्ट क्या है। तो टीचिंग एलिफेंट टू डांस कॉन्सेप्ट क्या है, today's business need faster action, more creative maneuvering, more flexibility, closer partnership with employees and customer. It requires a management that is agile and lovelier, that pursue opportunities without being bogged down by cumbersome structure and witty procedures that impede action. In short, corporate giant must learn to dance as nimbly, as speedily like a mice if they are to survive। ये लर्न किया जा सकता है, थोड़ा गंदे वर्ड्स हैं लेकिन लर्न करना है, सिलेबस का पार्ट है। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी बिकम
unacceptably slow due to long hierarchical chain of command, information passing slowly, delay in decision making. World of business has changed. क्या change है? Economic circumstances are different nowadays. Pace of change is much faster. New developments in IT made the business inefficient. Competition had increased. सब करना क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट को बिजनेस को बेस्ट वे में मैनेज करने के लिए 5 सक्सेस फैक्टर्स को फॉलो करना है, जिन्हें की सक्सेस फैक्टर का नाम भी दिया गया है। या इनको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का नाम भी दिया जाता है। क्रिटिकल की मीन इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर के आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए 5 फैक्टर्स को आपने फोकस करना है। क्या है 5 फैक्टर्स? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, empowerment and flat structure। सो एक बिजनेस को आजकल के दौर में अपनी सक्सेस के लिए 5 सक्सेस फैक्टर्स को फोकस करना है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मीन मैनेजर्स वर्कर्स को क्लोजली वर्क परफॉर्म करना है। मैनेजर्स वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशन, अच्छी कम्युनिकेशन की तरफ आपने जाना है ताकि मैनेजर्स वर्कर्स मिलके काम कर सके। इनोवेशन लानी है, मीन नई प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्शन मेथड्स, नई मार्केट्स आपने क्या करनी है, एक्सप्लोर करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। मतलब क्या, बोल्ड स्टेप लेने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, बोल्ड स्टेप लेने हैं। क्यों? नई चीज अडॉप्ट करने में रिस्क होता है, लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिटर्न भी होता है। तो जो रिस्क सीकर अप्रोच पे चलेगा सक्सेसफुल वही होगा। तो आपको क्या करना है, बोल्ड स्टेप लेना है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का मतलब क्या है, बोल्ड स्टेप लेना, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। साथ आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर टॉल की बजाय फ्लैट करना है। कैसे फ्लैट होगा, गेट रिड ऑफ मिडल मैनेजमेंट। गेट रिड का मतलब क्या है, छुटकारा हासिल करना, किसे, ये मिडल मैनेजमेंट से। क्यों? डिसीजन ये ले रहे हैं, काम ये कर रहे हैं, तो बीच में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर से बातें नीचे कम्युनिकेट, नीचे से बातें ऊपर कम्युनिकेट। क्या कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं? इनको अगर आप निकाल दो, यही पावर अथॉरिटी अगर आप इनको दे दो, तो इनको पावर अथॉरिटी देने से ये कमिटेड हो जाएंगे, इनकी सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगी, कमिटेड हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ फोकस हो जाएंगे। तो शायद आपको सुपरविजन भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगी। तो क्या करना आपने, ये लोअर लेवल के जो वर्कर सुपरवाइजर्स हैं इनको एम्पावर करना है। मीन पावर इन वाली ट्रांसफर करनी है इनको, जिससे आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और ये कमिटेड होने से सुपरविजन की नीड भी कम हो जाएगी। सो क्या करना है, एक बिजनेस को अपनी सक्सेस के लिए 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को फोकस करना है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एनकरेजिंग ऑल एम्प्लॉइज टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग ए डिसीजन अबाउट वर्क। मैनेजर्स वर्कर्स को क्लोजली वर्क परफॉर्म करना है। इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू ऑपरेटिंग मेथड्स। नई प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, नए ऑपरेटिंग मेथड जो ज़्यादा एफिशिएंट हो वो आपने डेवलप करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग बिजनेस रिस्क, मीन बोल्ड स्टेप, मैनोवरिंग की तरफ आपने जाना है, डर के पीछे नहीं बैठे रहना। एंड एम्पावरमेंट क्या है, इट मीन्स गिविंग मोर अथॉरिटी एंड पावर टू इंडिविजुअल वर्कर्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनेजर्स टू टेल देयर वर्कर्स व्हाट टू डू। Empowerment is needed to get the best out of individual at work। क्यों? एम्पावर करने से सेल्फ स्टीम क्या होती है, हाई होती है, तो उससे बेस्ट वे में वो यूटिलाइज होंगे। और एम्पावरमेंट करने के साथ ही क्या, अल्टीमेटली फ्लैट स्ट्रक्चर। क्यों? स्ट्रक्चर फ्लैट करोगे तो एम्पावरमेंट भी होगी। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या है, एसोसिएटेड।
फ्लैटर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू गेटिंग रिड ऑफ हायरार्कीज ऑफ मैनेजमेंट, मीन मिडल मैनेजमेंट से छुटकारा हासिल करना, एंड लॉन्ग चेन ऑफ कमांड दैट कैरेक्टराइजेस लार्ज ब्यूरोक्रेसीज एंड गिविंग मोर अथॉरिटी टू इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन बाय देमसेल्फ। द नीड फॉर सुपरविजन बाय मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड। क्यों? जब लोगों को नीचे अथॉरिटी दोगे, वो कमिटेड बनेंगे, तो उनको सुपरवाइज करने की जरूरत भी कम हो जाएगी। क्यों? कमिटेड का मतलब क्या है? उनके दिमाग अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव हो गए, मीन वो मैच्योर हो गए। सो क्या लर्न करना हमने? ऑलमोस्ट पूरा पेज। 7 पॉइंट्स क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज unacceptably slow due to long hierarchical chain of command, information passing slowly, delay in decision making, and world of business has changed. क्या change है? Economic circumstances are different nowadays. Pace of change is much faster. New developments in IT made the old way of doing things inefficient, and competition had increased. What is teaching elephant to dance concept? Today's business need faster action, more creative maneuvering, more flexibility, closer partnership with employees and customers. It requires a management that is agile, livelier, that pursue opportunities without being bogged down by cumbersome structure and witty procedures that impede action. In short, corporate giant must learn to dance as nimbly, as speedily like a mice if they are to survive. नहीं, आप 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताएं जो बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ 3 पूछे जाएं तो आपने पहले 3 बताने हैं। 3 पूछे जाएं तो सिर्फ पहले 3 बताने हैं। हम 5 पूछे जाएं तो फिर आपने एम्पावरमेंट और फ्लैट स्ट्रक्चर की भी बात करनी है। क्यों? ये एम्पावरमेंट, फ्लैट स्ट्रक्चर एक सेपरेट छोटा सा टॉपिक भी है कि आपस में इनका रिलेशन क्या है। जब स्ट्रक्चर को फ्लैट करोगे, मिडल मैनेजमेंट को रिमूव करोगे, तो पावर अथॉरिटी ट्रांसफ़र करोगे किसको? लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को। तो उससे क्या होगी? एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट होने से वो क्या बनेंगे? कमिटेड। कमिटेड होने से क्या होगा? सुपरविजन की नीड रिड्यूस हो जाएगी। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा टेस्ट कर चुका है ये थ्योरी 7 मार्क्स के लिए। 4 नंबर के लिए क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, और 3 नंबर के लिए 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर बिजनेस सक्सेस एक्सप्लेन करें। हाँ, बीच में टीचिंग एलिफेंट टू डांस कॉन्सेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, तो हमें ये लर्न करना है। डेफिनेशन मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो डेफिनेशन क्या है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की? इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इनटू डिसीजन मेकिंग। इनोवेशन का मतलब क्या है? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? टेकिंग बिजनेस रिस्क, मीन इन्वॉल्वमेंट इन मैनोवरिंग बोल्ड स्टेप्स। नीचे 2 सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। मैनोवर, बोल्ड स्टेप। बोल्ड स्टेप में नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने में स्टेप लेना है आपने, डर के नहीं रहना। अजाइल, बोल्ड, लवलियर, जिंदा दिली। स्टक होना, इस चीज में फंस जाना। कम्बरसम, अननेसेसरी, फजूल, जो ब्यूरोक्रेसी को कहा गया। इम्पैड, पुट डाउन, दबा देना किसी चीज को। ये तो इसने कहा है, अब आके हुआ है, लेकिन पुराने ज़मानों में ठीक था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं आए दिन, तो जहाँ पे चेंजेस नहीं आती हैं आए दिन वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कितने सारे उसने मसले निकाल दिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फिर भी ब्यूरोक्रेसी पे चलते हैं। क्यों? कहता है कि
वो इंडस्ट्री जहां पे आए दिन नई नई चेंजेस नहीं आती, मीन स्टेबल स्टैटिक है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी ठीक है। हाँ, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे आए दिन चेंजेस आती हैं, लाइक आईटी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे फिर ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है। आए दिन चेंजेस कहाँ पे नहीं आती? ऑटो इंडस्ट्री में, कार मार्केट में 10-10 साल एक ही मॉडल कार का चलता रहता है, कभी उसकी लाइटें गोल कर दी, कभी टेढ़ी कर दी, कभी सीधी कर दी। क्या ख्याल है? कभी शीशा टेढ़ा कर दिया, कभी गोल कर दिया, कभी लाइट यूं कर दी। टेक्नोलॉजी सेम रहती है, तो वो क्या है? स्टेबल स्टैटिक एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ठीक है, फॉर्मल सिस्टम ठीक है। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री मार्केट जहाँ पे आए दिन चेंजेस आ रही हैं, नई नई इनोवेशन अडॉप्ट करनी है, तो फिर डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन क्विक चाहिए, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है। आईटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट में आए दिन चेंजेस नहीं आती, एक ही तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सारी ज़िंदगी काम करते रहना है, तो फिर फॉर्मल वे में चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। भाग जाओ, कल मिलते हैं।